Yeah. So hi guys, we are having Devanjan with us. He will be telling his journey. He recently got placed in NXP Semiconductors. So he will be telling how was his interview, what all the questions were asked. He is having different experience of different companies. So he will be telling us all those shortly, and his about his college also, and about his hostel life. Yes, over to you, Devanjan. Okay, thank you, Sivanshu, for giving me this opportunity. So, firstly, I would like to introduce myself in very short. So, hi Yeah. everyone. I am Devanjan. I have completed my BTech in Electrical Engineering from Kalinga Institute of Industrial Technology, famously known as GATE, which is situated in Bhubaneswar, Odisha. After that, I have prepared for GATE and Engineering Service Examination, and then I have taken admission in MTech course in NIT Jalandhar last year in VLSI Design, and yeah, that's all about me. So कमिंग टू एनआईटी जालंधर, ये बहुत ही बढ़िया एक कॉलेज है जो कि लीस्ट फेमस है, बट मेरे ख्याल से वीएलएसआई डिज़ाइन के लिए एक बहुत ही अच्छा जगह है। और कैंपस बहुत ही शानदार है। थोड़ा सा छोटा लगेगा कैंपस, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत ही शानदार है। सो आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई फर्स्ट स्टेप्ड इनटू दिस प्लेस, I have started liking this place, and till the last date when I bagged my luggage and stepped out of the hostel. So this place has been very you know good to me, and that's all about my campus life, and this journey has been amazing here. Yeah. So, can you please tell what all the subjects were in your first and second semester? Okay. So I would list out the first semester subjects that were taught in first semester. So our course is very well designed, and that is industry oriented, and we have a very mixed course so that one student can build his profile in a very versatile manner. So the first semester subjects were semiconductor device modeling, then digital design with HDL, that is Verilog, then digital integrated circuit DIC. Then after that we have electives, and in electives there is RF and MEMS circuit. That is an RF circuit, means RF course. After that we have LPVD, which is low power VLSI design, and another subject is there that is also related to RF. So these were the six subjects, and there were two labs. One is VLSI CAD Lab 1, where the Silvaco tool that was used, and another is Verilog Lab. So the two labs were there. So, this And was your in first second semester subject. first semester, Yeah. so after that I will tell you about the second semester subjects. So the second semester subjects are embedded system design. After that, analog IC design, then IC fabrication, then RF circuit and devices, and memory testing and design, solid state circuits. And these are the six subjects. And again, we have two labs that are embedded system design lab and VLSI CAD lab 2, where Cadence was used, Cadence 2. हाँ. So in first semester मतलब Silvaco was there and second में Hmm. Cadence Cadence was में there. था, Cadence हाँ। Virtuoso. Cadence हाँ, Cadence Virtuoso was वर्चुअल में there. हम लोग काम करते हाँ. हैं। ठीक है. तो देवेंजन अपन मेन पे आते हैं, मतलब मेन चीज़ पे, दैट इज़ हाँ, हाँ। प्लेसमेंट। इससे पहले यस। चलो लेट्स टॉक अबाउट हॉस्टल ऑल्सो। तो हॉस्टल में क्या मतलब हाउ इज़ इट फॉर साउथ पीपल, हाँ, हॉस्टल के मतलब वो बारे में थोड़ा एकोमोडेट। बता देता हूँ। हाँ. हाँ, अकोमोडेशन एंड हॉस्टल के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। पिछले साल से थोड़ा-सा स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हुआ है। पहले वीएलएसआई डिज़ाइन में 22 स्टूडेंट थे, और इस साल वीएलएसआई डिज़ाइन में ऑलमोस्ट 42 स्टूडेंट्स हैं। तो स्ट्रेंथ थोड़ा-सा इंक्रीज़ हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को हॉस्टल अलॉट होता है जब सीसीएमटी का राउंड चलता है, जब हम लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसी टाइम पे हॉस्टल के लिए एक फॉर्म आता है जो कि फिल अप करना पड़ता है। उसके अकॉर्डिंग हॉस्टल आपको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, लेकिन पिछले साल से हम लोग को मतलब हॉस्टल दिया गया है। तो हॉस्टल के बारे में आते हैं कि बॉयज़ हॉस्टल जो कि है, मतलब 4 बॉयज़, टोटल 6 बॉयज़ हॉस्टल है एंड 1 मेगा बॉयज़ हॉस्टल है यहाँ पे।
तो उसमें हम लोग जो जो भी रूम्स हैं वो मतलब थोड़ा सा आपको शॉर्ट लगेगा, मतलब छोटा लगेगा, लेकिन उसमें आपको रहना मतलब एडजस्ट करना पड़ेगा धीरे धीरे। तो उसमें 2 सीटर्स ही मिलता है बेसिकली एमटेक वालों को, 2 सीटर ही मिलेगा, सिंगल रूम नहीं मिलेगा। और उसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, एक ही कवर्ड मिलेगा, 2 बेड मिलेगा, और जो भी बेसिक एमिनिटीज़ है उसमें आपको मिल जाएंगी, लॉन्ड्री वगैरह फैसिलिटीज़ भी हैं, और इसी में आपको मैनेज करना है। और बाकी पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी वगैरह आप तो यूज़ करेंगे ही। तो एंड हाउ वाज द फूड, मतलब खाना कैसे, साउथ हाँ, के हाँ, हाँ। लोग एडजस्ट कर पाएंगे कि नहीं? हाँ, साउथ एंड साउथ के ऑल्सो लोग वेस्ट बंगाल के लोग, क्योंकि उनको सबसे हाँ, ज़्यादा प्रॉब्लम होती है देखो, हाँ, यहाँ नॉन पे वेज, खाना क्योंकि हमारे जो यहाँ है, पे इन एनआईटी कुरुक्षेत्र नो नॉन वेज इज मतलब गिवन हाँ, टू देम। लेकिन यहाँ पे हाँ खाने के बारे में थोड़ा सा अच्छा है खाना, बहुत वेज एंड नॉन वेज ऑप्शन आपको मिल जाएगा। साउथ इंडियन ऑप्शंस भी है, ब्रेकफास्ट में आपको डोसा वगैरह मिल जाता है, और बेसिकली ब्रेकफास्ट थोड़ा सा अच्छा है यहाँ पे कंपेयर टू लंच एंड डिनर। ब्रेकफास्ट थोड़ा सा हेवी है, ये सारे तो हॉस्टल्स उसमें का आप है, सारे कॉलेज का हाँ, है। हाँ, 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 तो उसमें पराठा का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पराठा विद बटर। एंड उसके बाद आपको फिर अगर वो पसंद नहीं आए तो ब्रेड ऑमलेट आप खा सकते हैं। उसके बाद अगर वो भी पसंद नहीं आए तो कॉर्नफ्लेक्स एंड मिल्क का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और डिफरेंट डेज में डिफरेंट वही बनता है, और जिसमें सारे ऑलमोस्ट हाँ हर एक पार्ट ऑफ इंडिया का फूड उसमें रहता ही है। और उसके बाद लंच एंड डिनर में भी आपको वेज एंड नॉन वेज का ऑप्शन मिल जाएगा, तो उतना कुछ दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हाँ, कुछ कुछ दिनों में तो उतना बेहतर खाना नहीं बनता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप मैनेज कर लेंगे। यहाँ पे बाहर में स्नैकर्स है, नाइट कैंटीन है, तो खाने के बारे में उतना ज़्यादा प्रॉब्लम आई थिंक स्टूडेंट्स नहीं फेस करेंगे। ठीक है, एंड गाइस आई विल बी पुटिंग Devanjan LinkedIn ID on in the description box also, Yes, so yes, yes. if If you any are having student any will have any query regarding हाँ anything of NIT Jalandhar, then I will be definitely helping on like LinkedIn. या इसके बाद अब आते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम, दैट इज प्लेसमेंट। Yes. तो सबसे पहले देवंजन, कितनी कंपनीज आई थी, और मतलब जो कि आपने किन किन कंपनीज के इंटरव्यू दिए हैं, और उन हाँ, कंपनीज में मतलब आपको किस टाइप की डिफिकल्टी फेस हुई, मतलब लेट्स कम स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आप ये हाँ, बताइए कि हाँ, कौन सी एक एक कंपनीज करके आई थी। आते हैं। हाँ, हाँ। देखो, वीएलएसआई इंडस्ट्री में जो भी बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं, कुछ को छोड़ कर के ऑलमोस्ट हर एक कंपनी यहाँ पे विजिट किया है कैंपस प्लेसमेंट के लिए, इंटर्नशिप के लिए। स्टार्टेड विथ इंटेल। इंटेल पहले आई थी, उसके बाद फिर कैडेंस आई, फिर सैमसंग आई, एनएक्सपी आई, मीडियाटेक। अपार्ट फ्रॉम दैट एनवीडिया ये आई थी, टाटा मोटर्स आई थी, फिलिप्स आई थी, वेरॉक करके एक कंपनी है, उसमें भी थोड़ा सा वीएलएसआई प्रोफाइल के लिए वो भी आई थी। फिर एनसिस हो गया, फिर अपकमिंग डेज में माइक्रोचिप आएगी, अभी उसका टेस्ट एंड प्रोसेस स्टार्ट होगा। उसके बाद मॉसचिप भी अपकमिंग डेज में आ सकती है, एंड वॉल्वो। ये सब जो भी बड़े कंपनीज है वीएलएसआई सेक्टर में, वो इस साल आई थी। एंड इस साल हालांकि सिनॉप्सिस, एसटीएम एंड क्वालकॉम नहीं आई हैं, लेकिन पिछले साल जो कि हमारे सीनियर्स एंड सुपर सीनियर्स के बैच थे, उसमें AMD, क्वालकॉम, सिनॉप्सिस, एसटीएम ये सारी कंपनीज आई थी। ओके, तो ये तो सबसे पहली बात कि कौन सी कंपनीज आई थी। अब ये हाँ, जैसे आप बोल रहे थे पहले 22 स्टूडेंट्स वर देयर, नाउ दे हैव इंक्रीज फ्रॉम हाँ, 22 टू 42, यस, तो यस। उससे कुछ इम्पेक्ट आया है, पहली चीज़। हाँ, इस बारे में मैं बात करना चाहूँगा कि पहले जैसे 22 स्टूडेंट्स, उसमें से 17 लोगों का इंटर्नशिप लग गया था, और 2-3 लोग रह गए थे। लेकिन उनमें से भी अभी रिसेंटली दे गॉट फुल टाइम प्लेसमेंट इन डिफरेंट कंपनीज लाइक AMD, HCL टेक एक्सेट्रा। सो ऑलमोस्ट मैं 95% के अभाव भी मानूंगा पिछले साल का जो प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स है। अब आता हूँ मेरे बैच में क्या हुआ। इंटेल में 16 स्टूडेंट्स गॉट प्लेस्ड, देन एक कैडेंस में है, सैमसंग में 2 स्टूडेंट का हुआ है, एनएक्सपी में 10 लोगों का हुआ है, एंड मीडियाटेक में 2 स्टूडेंट्स का हुआ है। तो इसको अगर हम लोग टोटल करें तो 32 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 42 दे गॉट प्लेस्ड टिल नाउ, एंड remaining 10 are still trying and companies are still visiting. So we hope सो that almost the total batch will be placed. ओके, तो देवेंद्रन प्लीज टेल दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी आस्किंग व्हाट
how you have prepared for the interview? हाँ, देखो जैसे ही हम लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर का ब्रेक मिला था विंटर में, तो वो एक बड़ा गैप था, ऑलमोस्ट हाँ 1 मंथ एंड 1 एंड अ हाफ मंथ। तो हम लोग को पहले से पता था कि उसके बाद से ही कंपनी आना स्टार्ट हो जाएँगी। ऑलमोस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी कंपनी आना स्टार्ट हो जाएँगी। तो इसको दिमाग में रखते हुए हम लोग पहले से ही इस प्लेसमेंट का जो पढ़ाई है वो स्टार्ट कर दिए थे। तो जो भी हम लोग का सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर में, उनमें से काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जैसे वेरिलॉग हो गया, उसके बाद डीआईसी हो गया, उसके बाद लो पास वीएलएसआई सर्किट हो गया। ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ये प्लेसमेंट के लिए भी एक मेजर रोल प्ले करते हैं। तो जैसे कि हम लोग ने ये सेमेस्टर में ऑलरेडी पढ़ा था, तो उतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस नहीं हुआ इन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने में। तो वेरिलॉग को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है, और उसके लिए स्टूडेंट्स समीर पालनितकर की बुक फॉलो कर सकते हैं, या जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, उसको अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। तो वेरिलॉग एक बहुत ही मेजर इम्पैक्ट प्ले करेगा हर एक कंपनीज के इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। दूसरी बात, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को बहुत अच्छे से तैयार करना है, जो कि गेट लेवल पे आता है, और गेट लेवल को कोई अगर अच्छे से कर लेगा तो उसका पूरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कवर हो जाएगा। So I hope everyone who will come to this institution, they will have the foundation of digital electronics. So अगला है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का भी थोड़ा सा पार्ट। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स भी अच्छे से आना चाहिए। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का भी बेसिक्स हर एक कंपनी में पूछा जाता है। और जो डीआईसी है, डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट, तो उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके लिए रैबी का बुक आप फॉलो कर सकते हैं, आप लोग कैंग की बुक फॉलो कर सकते हैं, एंड कुछ एनपीटीईएल वीडियोस भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, जिसमें से सीमॉस के बारे में हर चीज़ आपका कवर हो जाएगा। एंड यही सब बेसिक चीज़ें इंटरव्यू में पूछेगा। उतना मतलब एकदम डीप लेवल में आपको लेके नहीं जाएगा, बेसिक से ही खंगाला जाएगा, और उसको अगर आप सही से आंसर कर पाए तो आई होप कि आपका जो इंटरव्यू पार्ट है वो बहुत ही ईजी बन जाएगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट, there are some other topics like STA, static timing analysis, FSM. These are also equally very important to crack the interview questions. So ये था मेरा टोटल जर्नी इंटरव्यू का। तो दिसंबर में मैंने पूरा तैयारी किया। उसके बाद जैसे जैसे कंपनी आता गया, मैंने अपना वीक पोर्शन जो है उसको आइडेंटिफाई किया कि कौन सा मेरा वीक पोर्शन है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं फिर काम करके उसको सुधार के फिर अगले इंटरव्यू के लिए मैं बैठा। ये तो हो गई पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ है कि हाउ योर फ्रेंड्स आर प्रिपेयरिंग विथ यू, मतलब दे डूइंग द सेम लाइक यू और दे वर डूइंग समथिंग डिफरेंट। दिस इज द कॉमन, हाँ, मतलब तो हम लोग वही थोड़ा सा हम लोग ग्रुप स्टडी वगैरह करते थे, जिसका भी जो भी वीक पॉइंट था वो मतलब जैसे इंटरव्यू कुछ किसी चीज़ का हुआ, इंटर में इंटरव्यू हुआ, पहला राउंड इंटर मतलब इंटर में कई राउंड ऑफ इंटरव्यू हुए, एक एक स्टूडेंट को 3-4 बार कॉल आया। तो जैसे ही पहला राउंड ऑफ इंटरव्यू होके उसका नाम नहीं आया, तो उसके बाद फिर हम लोग ने डिसाइड किया कि कौन कौन सा वीक पोर्शन है जिसमें से हम लोग को और भी अच्छे से काम करना है। तो इसको लेकर के थोड़ा सा हम लोग सीरियस प्रिपेयर किए, और रिहर्सल किए इंटरव्यू का कई कई बार कि कैसा जा रहा है, क्या हम लोग ठीक से बोल पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, कि कुछ पॉइंट मिसिंग हो रहा है। तो ऐसे करके हम लोग प्रिपेयर किए। और दूसरे लोग मतलब थोड़ा सा मतलब प्रोजेक्ट बेस भी, प्रोजेक्ट को भी अच्छे से तैयार करना है। जो भी प्रोजेक्ट्स आपने एमटेक में अपने रिज्यूमे में लिखा है, तो उसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। उसमें से ही मैक्सिमम क्वेश्चन, मैक्सिमम टाइम उसमें ही स्पेंड होगा हर एक इंटरव्यू में। तो उसको फिर अच्छे लाइक से तैयार व्हाट वाज करके योर फिर प्रोजेक्ट, आपका और माई आपके मतलब वन। जो सारे आपके दोस्तों का, ये मतलब बता सकते हैं? हाँ, तो मेरा बेसिकली 2 प्रोजेक्ट्स था। एक प्रोजेक्ट तो वेरिलॉग बेस्ड था, एफएसएम बेस्ड जो प्रोजेक्ट था, ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर यूजिंग एचडीएल, ये एक प्रोजेक्ट था। और दूसरा था कैडेंस के ऊपर जो प्रोजेक्ट मैंने किया था, कि उसमें इन्वर्टर का पूरा लेआउट मैंने डिज़ाइन किया था। तो एक कैडेंस के ऊपर था और एक वेरिलॉग के ऊपर था। 2 प्रोजेक्ट मैंने अपने रिज्यूमे में इंक्लूड किया था। और छोटा जो माइनर प्रोजेक्ट्स है उसमें जो भी वेरिलॉग का बेसिक सर्किट्स होता है, फ्लिप फ्लॉप्स वगैरह होता है, काउंटर्स वगैरह डिज़ाइन, ये सब इंक्लूड किया था। तो ये मेरा प्रोजेक्ट्स था। और जो भी अदर लोग थे, वो भी वेरिलॉग के ऊपर ही प्रोजेक्ट किए थे बेसिकली। फीफो डिज़ाइन, फिर काउंटर डिज़ाइन, वो लिफ्ट का जो एक आता है, तो
ऐसे करके थोड़ा सा मतलब वेरिलॉग बेस्ड प्रोजेक्ट्स हमने अपने रिज्यूमे में हम्म। इंक्लूड किया था। और कैडेंस के ऊपर भी बहुत सारे काम किए थे, कोई कोई उसमें जो ओपैम बेस्ड सर्किट्स है उसको भी बनाया था। तो हम्म। जो भी आपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड किया है उसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो प्रोजेक्ट में आप कुछ भी डालो तो उसका पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके ऊपर ही बेसिकली क्वेश्चंस आएंगे, एंड if you will be stuck in any part of the project, then उसका इम्प्रेशन थोड़ा सा खराब पड़ता है। तो पहले से ही सोच के अपना प्रोजेक्ट बनाइए और उसको अच्छे से तैयार कीजिए। तो आप कुछ क्वेश्चंस बता सकते हैं जैसे आपसे जो पूछे थे इंटरव्यू में, लाइक सम फेमस क्वेश्चंस दैट वर हाँ, आस्क्ड। जैसे जैसे पहला जो इंटरव्यू हुआ था मेरे इंटेल में, वो था एनालॉग के ऊपर, टोटल उसका एनालॉग डोमेन था। तो उसमें पहला क्वेश्चन मुझसे ये पूछा गया कि एक आरसी लो पास फिल्टर बनाने के लिए। तो मैंने आरसी लो पास फिल्टर डिज़ाइन किया और उसका एनालिसिस पूछा कि क्यों ये लो पास बिहेवियर क्यों है इसका। तो उसको मैंने जैसे एक्सप्लेन करना नेटवर्क थ्योरी के मदद से मैंने एक्सप्लेन कर दिया उसको। तो उसके बाद फिर उसमें एक स्टेप रिस्पॉन्स देके उसके आउटपुट के बारे में मेरे को पूछा गया। तो हम्म। इसको अच्छे से तैयार, जो भी एनालॉग मतलब एनालॉग का अगर कोई डोमेन होगा तो हम्म। पहले से ही उसकी तैयारी रखिए। आरसी सर्किट के बारे में पहले से ही यूट्यूब में है, हिमांशु अग्रवाल करके जो चैनल है वहाँ हाँ। से प्रिपेयर कीजिए अच्छे से, तो आपका आरसी सर्किट पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ओपैम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था उस इंटरव्यू में, मेरे को ओपैम के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा गया था। ओपैम यूज़ करके डिफरेंशिएटर, इंटीग्रेटर, ये सब डिज़ाइन करने के लिए पूछा गया था। तो ये एक बहुत ही बेसिक इंटरव्यू चला था, इंटेल का पहला जो इंटरव्यू मेरा हुआ था तो उसमें। उसके बाद कैडेंस में जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो उसमें थोड़ा सा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और सीओए के बारे में ज़्यादा पूछा गया, क्योंकि वो थोड़ा सा मिक्स प्रोफाइल था। तो उसमें सीओए प्रोफाइल एक बहुत वाज ही अच्छा, लाइक, प्रोफाइल जो आप बता सके तो, जैसे तो हमारे एक कॉलेज में आई थी, प्रोडक्ट वैलिडेशन इंटर्न के लिए आई थी। हाँ, तो इसमें एग्जैक्टली मुझे उतना अभी याद नहीं है, लेकिन वो एम्बेडेड, थोड़ा सा एम्बेडेड का अच्छा, प्रोफाइल था। तो उसमें थोड़ा सा तो सीओए सीओए वाज सीओए बहुत अच्छे से मेंशन। बनना। हाँ, सीओए वाज आस्क्ड, एंड उसके लिए उसका इंटरव्यू मैं इतना अच्छे से नहीं दे पाया, क्योंकि उस टाइम पे सीओए का मेरा उतना ज़्यादा तैयारी नहीं था। उसके बाद फिर इंटेल का एक सेकंड इंटरव्यू हुआ जो कि एफ बेस्ड था। तो उसमें क्योंकि मैं उस टाइम पे अपने रिज्यूमे में एफ के बारे में इंक्लूड किया था कि डी10 लाइट करके एक एफ आता है, उसके ऊपर मैंने काम किया था। तो उसको इंक्लूड किया था, तो उसके बारे में पूरा इंटरव्यू मेरा एफ के ऊपर चला कि एफ बेसिक्स, जो सर्किटरी है एफ के अंदर वो कैसे काम करता है, CLB क्या होता है, एल उसमें कैसे एल यू कनेक्टेड टी। है। तो ये सब के बारे में पूछा गया। उसके बाद फिर बेसिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन उसमें पूछे गए कि नैंड नॉट को यूज़ करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेट्स बनाने के लिए बोला गया। उसके बाद फिर फ्लिप फ्लॉप कन्वर्सन के बारे में, फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप को कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसका सर्किट बनाने के लिए बोला गया। फिर सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस रीसेट, ये एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है वेरिलॉग का, वो लगभग हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो ये सब पूछा गया उसमें। और लास्ट में थोड़ा सा एनालॉग के बारे में पूछा गया कि ओपैम्प का जो भी कैरेक्टर, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या डिफरेंस है, ऑफसेट्स जो ओपैम्प्स का आता है उसके बारे में पूछा गया। फिर एसटीए के बारे में भी उसमें पूछा अच्छे से। तो ये था इंटेल का सेकंड राउंड, मतलब सेकंड इंटरव्यू का जो कॉल आया था मेरे को। और उसके बाद लास्ट में जब एनएक्सपी का इंटरव्यू हुआ तो उसमें प्रोजेक्ट ही बहुत टाइम तक, लगभग 15 to 20 मिनट्स प्रोजेक्ट के बारे में चला, जो कि कैडेंस के ऊपर मेरा था। तो कैडेंस के ऊपर बेसिक इन्वर्टर सर्किट का मैंने लेआउट तक डिज़ाइन किया था। तो उन्होंने पहले बेसिक एक इन्वर्टर सर्किट सीमॉस को यूज़ करके बनाने के लिए, ड्रॉ करने के लिए बोला पेंट पे। तो मैं पेंट ओपन करके उसको ड्रॉ किया। फिर उसका वर्किंग समझाने के लिए कि बोला कि डिफरेंट डिफरेंट सेट्स ऑफ इनपुट लेके 0001 1011 ये लेके आप समझाइए कैसे ये इन्वर्टर की तरह काम कर रहा है। तो उसको मैंने एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से। उसके बाद उन्होंने पूछा कि सीमॉस में जो इनमॉस और पीमॉस है उसको अगर हम लोग एक्सचेंज करते तब वो कौन सा एक्सचेंज सर्किट कर। बन जाता है। हाँ, तो उसका फिर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सर्किट पे, तो उसके बारे में पूछा। फिर उन्होंने नॉइज़ मार्जिन पूछा कि नॉइज़ मार्जिन क्या होता है। तो
उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नॉइज मार्जिन का क्या होता है। फिर उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर डिसिपेशन इन सीमॉस इसके बारे में पूछा, जो कि हम लोग एलपीबीटी में पढ़ते हैं पहले ही सेमेस्टर में। तो उसका बहुत हेल्प हो गया इस इंटरव्यू को क्रैक करने में। उसके बाद फिर मतलब पैनलिस्ट 2 थे वहाँ पे, तो जैसे ही जो सीमॉस वाला पार्ट खत्म हुआ, वैसे डिजिटल वाला पार्ट स्टार्ट हो गया। तो डिजिटल में जो बेसिक सर्किट्स है उसके बारे में पूछा कि आप एक क्या बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप उन्होंने दे दिया, तो उसको फिर मक्स से बनाने के लिए बोला। सो मक्स से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट्स बनाने के लिए उन्होंने पूछा। उसके बाद फिर वेरिलॉग में क्वेश्चन पूछने लगे कि सिंक्रोनस एसिंक्रोनस रीसेट के अंतर क्या होता है, और असाइन और इनिशियल स्टेटमेंट के बीच में क्या अंतर होता है, और फिर डी फ्लिप फ्लॉप का एक कोड लिखने के लिए बोला यूजिंग सिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस रीसेट, और डेटा टाइप्स के डिफरेंट डेटा टाइप्स के बारे में पूछा। सो बेसिक वेरिलॉग क्वेश्चंस वर आस्क्ड, एंड देन थोड़ा सा उसमें पाइथन के बारे में पूछा कि आपको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आता है कि नहीं। तो उस टाइम पे तो मेरे को नहीं आता था, तो मैंने ऑनेस्टली जवाब दे दी कि नहीं सर मेरे को नहीं आता है, लेकिन मैं सीख रहा हूँ। तो कोई भी इंटरव्यूअर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे तो उसका हमेशा ऑनेस्टी से जवाब दें। ऐसा नहीं कि आप अपने आप को थोड़ा सा एग्जैजरेट करने के लिए आप थोड़ा सा कुछ और बता दिए, उसमें फंस गए, फिर वो इम्पैक्ट बहुत खराब पड़ता है। तो जो भी बोलिए आप लोग ऑनेस्टी के साथ बोलिए, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। एक और चीज़ देवरंजन, मैं ये पूछना चाहूँगा, व्हाट इज़ योर रोल इन एनएक्सपी? मतलब हैव दे टोल्ड यू व्हाट दे आर गोइंग टू ऑफर यू, व्हाट नो नो, रोल आर यू गेटिंग? टिल नॉट दे हैव नॉट टोल्ड अस। एक्चुअली जो ऑफर लेटर आया है उसमें स्टूडेंट इंटर्न लिखा गया है, और उसमें लिखा गया कि जब हम लोग ज्वाइन करेंगे वहाँ पे तब जाके वो लोग टीम अलॉट करेंगे, और जो भी प्रोफाइल है तब वहाँ पे ज्वाइनिंग के बाद वो लोग अलॉट करेंगे। Okay, so that's all from my side. And guys, if you are having any question, you can ask him on LinkedIn. Apart from that, you can drop down your comments. We will be answering you. That also. Thank you, Devanjan. Any last words ऑब्वियसली, from your side? Any last thing you want to add? यस यस, जो भी अब, हाँ हाँ, कुछ बात हैं जो आपको ध्यान रखना है, कि जैसे सीसीएमटी के बाद या उससे पहले रिगार्डिंग सीसीएमटी आप लोग को टाइम जो भी मिल रहा है उसमें आप लोग पहले से ही अगर थोड़ा बहुत तैयारी करके आएंगे तो ये जर्नी आपके लिए बहुत स्मूथ बन जाएगा। थोड़ा बहुत आप इस टाइम को यूटिलाइज करिए, और थोड़ा वेरिलॉग के बारे में जानिए, और थोड़ा सा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अपना अच्छे से तैयार कर लें, तो आपको बहुत ही आसानी होगी इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। और आगे चल के भी जो भी आपको फ्री टाइम मिलता रहेगा, क्योंकि कॉलेज लाइफ आप लोग एंजॉय तो ज़रूर करेंगे, ये तो बेसिक है, सभी स्टूडेंट कॉलेज लाइफ को एंजॉय करने के लिए ही कॉलेज में एडमिशन लेते हैं मेनली एमटेक में। तो एमटेक करिए अच्छे से एंजॉय करिए अपने लाइफ को, बट थोड़ा सा सीरियस रहना भी बहुत ज़रूरी है, और सीजीपीए मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीजीपीए आपका पहला इम्प्रेशन है। जब भी आपका कोई भी कंपनी का जॉब प्रोफाइल आएगा, आप फॉर्म फिलअप करेंगे, तो शॉर्ट लिस्टिंग हमेशा सीजीपीए के बेसिस पे ही होगा। तो दैट इज़ द प्रायोरिटी दैट यू हैव टू टेक इन योर लाइफ, एंड थोड़ा सा सीरियस आप लोग बने रहिए शुरू से ही, और जर्नी को एंजॉय करते हुए अच्छे से प्रिपेयर करिए। कॉलेज बहुत बढ़िया है, आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करिए, और आप लोग एक बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म पे इन फ्यूचर अपने आप को पाएंगे। दैट्स फ्रॉम माय साइड। Thank you, Devanjan. Okay, guys. Bye. ओके।